हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एलकैरो कैरियर इंस्टीट्यूट। आई एम योर मैथ्स मेंटर कुलदीप गुर्जर। टुडे वी डिस्कस क्लास 8 रैशनल नंबर टॉपिक। ओके, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। आवर प्लेटफॉर्म इज एलकैरो कैरियर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। साथ साथ स्कूल बोर्ड्स के साथ साथ यहाँ पे आईआईटी जेई और नीट की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर ऑफ क्लास 8। सो रैशनल नंबर ऑफ क्लास 8। So first, before we starting this topic, we know some basic and important thoughts, means what we have discussed in this chapter. So in the rational number, we have discussed first introduction of rational number. Rn stand for rational number. Second, addition, subtraction, multiplication and division of rational numbers. Third, rational numbers means how to find rational numbers between टू रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर्स गिवन है और उनके बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम वहां पे समझेंगे। हाउ टू लोकेट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, मींस नंबर लाइन पे, नंबर लाइन आपने देखा है प्रीवियस क्लासेस में। सो नंबर लाइन पे कैसे हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहां पे देखने वाले हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। What are properties? You have read out in previous classes for integers, whole number, just like as closure property, commutative property, associative property, distributive property. So these properties are also studied in this chapter. So today our session is starting from the introduction of rational number. Introduction of rational number. So before starting rational number, first we know the basic things, just like natural numbers, what are whole numbers, what are integers. So within some seconds, within some minutes, we discuss about that. First is natural numbers. Natural numbers. So what are natural numbers? So natural numbers क्या होते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक एज कि मैंने आपको बोला कि you have to count these fingers, you have to calculate these fingers. So calculation जहां पे means count कर सकते हैं, means इन fingers को मैं count कर सकता हूँ 1 2 3 4 5. So there are 5 fingers. Okay, so means जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं those numbers are natural numbers. Counting numbers are called natural numbers. Are called natural number and they are starting from 1, क्योंकि 1 से ही काउंट नहीं होती है, 1 से पहले तो कुछ होता नहीं है जिसको हम काउंट कर सकें। सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 and so on. Next, whole numbers. So what are whole numbers? So natural numbers including with zero means natural numbers के साथ हम जीरो को और इंक्लूड कर लेते हैं, so they are whole numbers.
natural numbers including with 0. Example, they are starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So these are whole numbers. Integers. What are integers? So integers are the set of whole numbers and the negative numbers, or we can say the integers are the natural numbers, the negative numbers and 0. The integers are the set of whole numbers and negative numbers. Means negative numbers and whole numbers. Whole number is starting from 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And negative numbers -1, -2, -3, -4, -5 till minus infinite. Okay. So these are negative numbers. So these are negative integer. 0 is 0 integer and these are positive integer, or you can say natural number, or you can say counting numbers. So these discussed in previous classes also. These are whole number. These are natural number from 1, 2, 3, 4 and so on. So these are counting and natural number. These are whole numbers. 0 is 0 integer and these are negative integers. Okay. So now we come to our main topic, that is rational number. So we start what is rational number, or we can say what are rational numbers. Rational numbers. क्या होता है rational number? So the basic or the main definition of rational number is the number which can be written in the form of P by Q. The number which can be written in the form of P by Q. In the form of P by Q. That is important, in the form of P by Q, where P and Q both are integers. ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा? P and Q integers होने चाहिए. And very important, last line, and Q not be equal to 0, means डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसको बिल्कुल मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं बेटा आपको, सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? किस फॉर्म में होते हैं? P by Q के फॉर्म में होता है, मींस फ्रैक्शन फॉर्म में होगा. एंड P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मींस इंटीजर से बिलोंग करेंगे. P भी इंटीजर होगा, Q भी इंटीजर होगा, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे. ओके, एंड Q नॉट बी इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए. इस कंप्लीट डेफिनेशन का मीन ये निकल के आया कि P अपॉन Q के फॉर्म में अगर किसी नंबर को हम लिख सकते हैं तो वो एक रेशनल नंबर होगा. P और Q बोथ आर इंटीजर्स, मींस दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. एंड Q होना चाहिए डिनोमिनेटर, वो कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता. ओके, सो हम इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं बेटा. यहाँ पे एग्जांपल्स आर जस्ट लाइक 2 अपॉन 5 माइनस 6 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन माइनस 6, 0, 1, minus 2. So these are rational number. So your first question raised that, sir, 0 is a rational number, 1 minus 2. So now we have discussed that 0 or 1 or minus 2 is a rational number or not, because these numbers 2 by 5. So 2 by 5 is written in the form of P by Q. So this is the P and this is the Q. And P upon Q
के फॉर्म में अगर ये राइट है, सो दैट्स वाई ये एक रेशनल नंबर है। यहां पे भी ये 6/12 p by q के फॉर्म में राइट है एंड q नॉट बी इक्वल टू 0, सो अगेन ये रेशनल नंबर है। 5/-6 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 and -6 बोथ आर इंटीजर्स एंड p and q क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर होने चाहिए एंड q इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। यहाँ पे भी q 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन सर क्या 0 एक रेशनल नंबर होगा? तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। 0 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 राइट कर सकता हूँ। यस, वी कैन राइट 0 एज अ 0/1 and 0/1 is in the form of p by q, where our definition satisfied that it is a rational number because q not be equal to 0. p may be 0, p 0 हो सकता है। यहाँ पे p और q both are integers, p 0 हो सकता है but q कभी भी 0 नहीं होगा। That's why this satisfied that 0 is a rational number. That's satisfied that 0 is a rational number. 1, we can write 1 as a 1/1. -2, so you can write -2 as a -2/1. So that's why these numbers are also a rational number because they are also written in the form of p by q. इन सभी numbers को हम किस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, p by q के फॉर्म में। So कुछ और स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं इसके बाद कि और कौन कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। So I hope यहां तक ये समझ में आया होगा। अब आते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने अभी जस्ट समझाया कि रेशनल नंबर की मैन डेफिनेशन होती है, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर होगा किस फॉर्म में, p by q के फॉर्म में एंड p and q बोथ आर इंटीजर्स, बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट बी इक्वल टू 0, q नहीं होना चाहिए 0। सो हम कुछ स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्या सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। सो हम देख लेते हैं बेटा, एवरी नेचुरल नंबर, मैं सारे नेचुरल नंबर को क्या बोल रहा हूं, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट in the form of रैशनल नंबर। सारे नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, रैशनल नंबर। सर कैसे? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मीन्स 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। सो 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा 1/1, 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1, 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/1, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1/1। 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। सो 4 represent as a 4/1 and 5 represent as a 5/1, and these all are written in the form of p by q, where p and q both are integers, 1 2 3 4 5 all are integers and 1 1 1 all are integers and q not be equal to 0, q नहीं होना चाहिए क्या, 0, q 0 नहीं है यहाँ पे। That's why these all natural numbers can be written in the form of rational number। Second statement है बेटा मेरा, every whole number can be represented in a रैशनल नंबर। सो नेचुरल नंबर, सो हम देख लिए रेशनल नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल नंबर की बात कर रहे हैं तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो यहां तो आपने देख ही लिया नेचुरल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर भी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स बेसिकली होते क्या है बेटा, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म, कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। सो हमें सिर्फ 0 को बताना था और 0 को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 0 can also written in the form of 0/1 because 0/1 is also 0, and so that's why 0/1 is written in the form of p by q, where q not be equal to 0। q क्या है यहाँ पे, q 1 है। q क्या नहीं होना चाहिए था, q 0 नहीं होना चाहिए था। That's why it's also a rational number। So all whole numbers can be represented in the form of a rational number। सो ये डेफिनेशन में क्यों लिखा गया है सर, Q नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब इस बात पे आते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं कि Q नॉट बी इक्वल टू 0 का मीन क्या है। लेट्स से आई हैव रिटन 0/1 दैट इज इक्वल टू 0, बट 1/0 अगर 0 एज अ डिनोमिनेटर में आ जाता है तो फिर क्या निकल के आता है, 1/0 स्टैंड्स नॉट डिफाइन इंफिनिटी। ये आपको इंफिनिटी भी दे देगा, मींस जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ऐसा नंबर जिसका हमें पता ही नहीं कि वो नंबर कैसा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि एक रेशनल नंबर होगा, हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है। सो दैट्स व्हाई वी कैंट राइट डिनोमिनेटर एज अ 0।
ये मीन यही है बेटा इसका, लेट से 0/0 हो गया, 1/0 हो गया, कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो दैट मीन्स वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो वहां पे आप डिफाइन नहीं कर सकते उन नंबर को, और जब नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते तो कैसे कह सकते हैं कि वो एक रेशनल नंबर होगा? दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज डिनोमिनेटर एज 0। आई होप यू क्लियर दिस टॉपिक। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर can be written in the form of a rational number। सारे इंटीजर को भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on till positive infinite till negative infinite। ओके, लेकिन इनफाइनाइट को हम लेते नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है। ओके, सो -5, सो -5 कैन बी रिप्रेजेंट इन द -5/1, सो दिस इज इन द रिटर्न ऑफ p/q। ओके, सो p/q के फॉर्म में हो सकता है बेटा, और -5 क्या एक इंटीजर है, 1 भी क्या एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर्स हैं एंड q नॉट बी इक्वल टू 0, सो दिस विल बी अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। 0 you have seen that 0 is written in the form of 0/1, so that's a rational number। and 5/1, 4, 4/1, 3, 3/1, so every integer can be written in the form of a rational number। so 3 statements यहां से क्लियर हो चुके हैं बेटा। पहला स्टेटमेंट है every natural number can be written in the form of rational number, every whole number can be written in the form of rational number, every integer can be written in the form of rational number। now मेरा अगला स्टेटमेंट आता है बेटा, every rational number is an integer, every rational number is an integer। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे? तो देखना ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। मैंने 3 स्टेटमेंट्स आपको पढ़ा दिए, अब 4th स्टेटमेंट का जवाब आपको देना है। ओके, सो माय 4th स्टेटमेंट इज एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या वो एक इंटीजर होगा? सो रेशनल नंबर बेटा क्या हो गया मेरा, जस्ट लाइक मैंने 2/3 ले लिया, क्या 2/3 बिलोंग्स टू आई? 2/3 आई से बिलोंग करता है, जबकि 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में रिटर्न है। सो फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा बिकॉज वी कांट राइट एवरी रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। हाँ, इंटीजर को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, बट रेशनल नंबर को इंटीजर के फॉर्म में जरूरी नहीं है रिटर्न कर सके। क्लियर? हाँ, आप कहोगे कि 2 इज अ रेशनल नंबर बट इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, कुछ केसेस में हो सकते हैं बट इट्स अ डाउटफुल केस क्योंकि यहाँ पे 2/3 सभी केसेस में नहीं हो रहा। दैट्स वाई ऑल ओवर ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स। सो जो बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने आज यहाँ पे पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं बेटा हाउ टू एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। सो आते हैं सेकंड टॉपिक पे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। So before starting this topic, we understood a chart of rational numbers। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा सबसे पहले नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स, सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, देन उसके बाद नेचुरल नंबर्स के अगर मैं बाहर की बात करूं, सो क्या आते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स में क्या होते हैं बेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मींस होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है और होल नंबर उसके नेचुरल नंबर के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर्स में भी होते हैं। सो होल नंबर का पार्ट होगा जो नेचुरल नंबर से जस्ट बड़ा होगा। ओके, होल नंबर के बाद आते हैं बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स में दोनों इंक्लूडेड होंगे, क्या क्या, नेचुरल नंबर्स भी, होल नंबर्स भी। क्योंकि इंटीजर्स में क्या क्या होंगे बेटा, इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे एंड सारे होल नंबर्स भी होंगे, सारे नेगेटिव होंगे एंड होल नंबर्स भी होंगे। सो इंटीजर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है बेटा, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर।
और ये सारा इंक्लूडेड है बेटा किसके अंदर, रैशनल नंबर के अंदर। ये सारा किसके इंक्लूडेड है, ये किसके अंदर है, रैशनल नंबर्स के अंदर ये सारा इंक्लूडेड है। क्या क्या, इंटीजर्स भी, होल नंबर्स भी एंड नेचुरल नंबर्स भी, मींस ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस रैशनल नंबर्स। सो ये मैंने एक नंबर लाइन आपने देखी हुई है, इंटीजर्स आप जब रीड करते हो तो नंबर लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज द नंबर लाइन वेयर we plot 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Here -1, -2, -3, -4, -5 and so on. Okay. So सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं मींस काउंटिंग नंबर्स होते हैं, these are counting numbers. These are counting numbers. और क्या बोलते हैं इनको, नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, और नेचुरल नंबर्स। अगर बेटा ये नेगेटिव नंबर्स हैं, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, सो दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे। ओके, 0 इज जीरो इंटीजर, दीज आर नेगेटिव इंटीजर, एंड इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, सो दीज आर होल नंबर्स। And beta this complete negative integers, zero and natural number, or you can say negative integer and whole numbers, negative integers and whole numbers, complete set is can be written in the form of rational numbers. These all are rational numbers, these all are rational numbers. So this is a chart of number line, on draw on a number line. So number line पे भी मैंने यहाँ पे प्लॉट करके बताया आपको कि कैसे कैसे हम नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, देन उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स को, जीरो इंटीजर्स को, एंड फाइनली रेशनल नंबर को भी हम यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। वो हम रिप्रेजेंटेशन बाद में सीखेंगे, अभी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो दीज ऑल आर रेशनल नंबर, दीज ऑल आर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। सो ये हो गया बेटा। जो सेकंड टॉपिक है आपका, सेकंड टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।